مسیح کے زندہ جلالی و بابرکت نام کے وسیلہ سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج پھر خدا کا زندہ کلام لے کر ہم آپ کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ آج پھر خدا کا کلام بھائی شرون ہمارے درمیان پیش کریں گے اور بھائی ذیشان پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں۔ جی شکریہ بھائی۔ تو جی ناظرین، آئے ہم سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے خالق خدا کے حضور چلیں، کیونکہ وہی ہمارا زندہ خدا ہے اور ہمیں اسی کے حضور جھکنا ہے اور اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اور ہم سبھی دعا کریں، قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، آسمان و زمین کے خالق اور مالک، بزرگ وفادار خدا، پیرے خداوند تیرے حضور آتے اور پیرے خداوند منت کرتے ہیں پیرے خداوند کہ تو آج پیرے خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے پیرے خداوند ہمیں سیر اور اسودہ کرنا پیرے خداوند، تیرے پاک کلام کی باتیں جو تیرا بندہ پیرے خداوند آج شام پیرے خداوند بیان کرے، وہ ہم سبوں کے لیے پیرے خداوند برکت کا باعث ہو پیرے خداوند، اور اس کے وسیلہ سے ہم سبھی بڑی برکت پائیں پیرے خداوند۔ یہ سبھی کچھ مانگ لیتے اور پا لیتے آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے، آمین۔ تو جی بھائی شرون آئیں اور ناظرین کو کلام مقدس میں سے سکھائیں۔ جی شکریہ ذیشان بھائی اور شکریہ انیس بھائی آپ کا بھی۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں پھر سے موقع دیا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ساری ٹیم کی طرف سے اور اس چینل کی طرف سے آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آخر کیوں یسوع مسیح کے نام ہی میں بپتسمہ لینا چاہیے، کیوں یسوع کے نام سے بپتسمہ دیا جائے، تاکہ بپتسمہ لینے والے اس میں آپ کو 5 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کلام مقدس میں سے، جس میں سے پہلا ہے گناہوں سے نجات پائے، کیونکہ یہی ہے آخر کیوں یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا جائے، تاکہ بپتسمہ لینے والا گناہوں سے نجات پائے۔ پانی کے بپتسمہ کے بارے میں اکثر بہت سے لوگ بہت سی مشنوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ گوتا مشن ہے، تیسری مشن ہے۔ بھئی اس بات کو چھوڑیے، کلام کیا سکھاتا ہے بپتسمہ کے بارے میں یہ دیکھیے۔ یہی آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت پر ہم غور کریں گے، جس میں یوں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہیلیلویا۔ میرے عزیزوں دیکھیں یہاں بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے۔ بپتسمہ کیوں لینا چاہیے؟ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ کو 5 پوائنٹ بتاؤں گا، جس کا پہلا پوائنٹ ہے گناہوں سے نجات پائے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 21 آیت، پہلا باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مطلب یسوع کو قبول کرنے سے، یسوع کے وسیلہ سے انسان گناہوں سے نجات پاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں گے مرکز 16 باب اور اس کی 16 آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جس میں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، ابھی پہلا ہی پوائنٹ چل رہا ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔
सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरा ना पहुंचेगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। यीशु मसीह के वसीला से आखिर क्या हो रहा है? इंसान नजात पा रहा है, इंसान गुनाहों से नजात पा रहा है। तो ये है मेरे अजीजों बपतिस्मा लेने का पॉइंट। बपतिस्मा लेने से, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने से क्या होता है, इसी का हम दूसरा हिस्सा देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे जिसमें लिखा है, वो कलाम हमें सिखाएगा कि बपतिस्मा लेने वाला उसके सबब से उसके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। लूका की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 47 आयत हमें क्या कहती है? देखिए मेरे साथ, लूका की इंजील उसका 24 बाब और 47 आयत में लिखा है, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। उसके गुनाह माफ होंगे जो यीशु को कबूल करेगा। यीशु के वसीला से इंसान के गुनाह माफ होंगे। यही था हमारा दूसरा पॉइंट। और इसी के साथ हम देखेंगे अमाल 2 बाब उसकी 38 आयत देखेंगे मेरे साथ। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। आ गया जी, आ गई बात वही कि यीशु मसीह के नाम से आखिर क्यों बपतिस्मा लिया जाए, क्यों लिया जाए? क्योंकि पतरस कहता है तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी मांगे। गुनाहों की माफी मिलती है, गुनाह बख्शे जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब बपतिस्मा लेते हैं यीशु के नाम से, किसी और के नाम से नहीं, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने से, उसके बाद तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। जब आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेंगे उसके बाद रूहुल कुदस इनाम में मिलेगा। इसके बाद देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत हमें क्या सिखाती है। अभी तक हम दूसरा पॉइंट सीख रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत लिखा है, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। उसके नाम के सबब से, यीशु नाम में ऐसी कुदरत पाई जाती है कि जिस नाम के वसीला से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम के वसीला से बीमारी जाती रहती है, जिस नाम के वसीला से अंधे देखते हैं, यह है यीशु नाम। इसलिए यीशु नाम के वसीला से बपतिस्मा लेना जरूर है। यह है यीशु नाम से बपतिस्मा लेना। हालेलुया। इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, यीशु मसीह की मौत में शामिल हो जाए। रोमियो 6 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में हम सीखेंगे, रोमियो 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत पर हम गौर करेंगे। देखिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा, आया अल्फाज बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। फिर बपतिस्मा, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। यह है यीशु मसीह के नाम में जब बपतिस्मा लेंगे नई जिंदगी मिलती है, पुरानी इंसानियत जाती रहती है। ऐसे ही जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमें सिखाया जाता है, कलाम भी सिखाता है, कलाम भी उसी तरह हमें सिखा रहा है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हम यीशु के नाम से पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम वो नहीं रहते, हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहती है, बल्कि नई इंसानियत हमारी जिंदगी,
हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती है यीशु के नाम के सबब से। यीशु के नाम के सबब से ऐसा ही होता है मेरे अजीजों। देखेंगे यीशु मसीह में शामिल हो जाए। गलीतियों 3 बाब और उसकी 27 आयत हमें क्या दिखाती है, समझाती है। कलाम मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं। गलीतियों 3 बाब और उसकी 27 आयत। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। वाह जी वाह, आ गई बपतिस्मे की बात जी। देखिए बपतिस्मा क्यों यीशु नाम में लिया जाए। जो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो यीशु को पहन लेते हैं। छोटी बात नहीं, यीशु पाक है। लेकिन जब यीशु के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी यीशु में शरीक हो जाते हैं, यीशु को पहन लेते हैं। यह है यीशु नाम से बपतिस्मा लेना। हालेलुया। बहुत से इशू उठते हैं बपतिस्मा के बारे में। इसके बारे में अगला स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, आज इसका पहला हिस्सा है बपतिस्मा क्यों यीशु नाम से लेना चाहिए। इसका मैं दूसरा टॉपिक भी आपको जाते वक्त बता के जाऊंगा कि इसका दूसरा टॉपिक क्या है। इसका 5वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह का नाम ले लेने से गुनाह खत्म हो जाते हैं। अमाल 22 बाब और उसकी 16 पढ़ता हूं। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। यीशु का नाम लेने से, यीशु के नाम में इसलिए बपतिस्मा लेना जरूर है कि उसके नाम के सबब से क्या हो रहा है, गुनाह धुल जाते हैं। उसके नाम के वसीला से, उसके नाम से बपतिस्मा लेने से देखें कितने मैंने आपको पॉइंट दिखाए हैं। गुनाहों से नजात पाता है, इसके गुनाह माफ हो जाते हैं। यीशु मसीह में मौत में शामिल हो जाता है इंसान, उसके बाद यीशु मसीह में शामिल हो जाएगा। क्योंकि पीछे भी मैंने आपके लिए पढ़ा कि जिसने यीशु को कबूल किया उसने यीशु को पहन लिया। जिसने उसके नाम से बपतिस्मा लिया उसने यीशु को पहन लिया। हालेलुया। इसी का आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, रोमियो 10 बाब और उसकी 13 आयत निकालिए मेरे साथ। रोमियो 10 बाब उसकी 13 आयत, जिसमें लिखा है क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। यही है उसके नाम से बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। कलाम देखिए हमें बताता है बपतिस्मा के बारे में, तो फिर हमारी मिशनरियों में क्यों ये बातें चलती हैं। हाँ, मैं शायद किसी को मेरी बात का गुस्सा भी लगता हो, बुरा लगा हो, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं कलाम को नहीं छुपा सकता। कलाम हमें क्या सिखाता है बपतिस्मा के बारे में, सीखिए, देखें। बहुत से सीनियर लोग भी शायद मेरी इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप ये देखिए हमें कलाम क्या सिखाता है मेरे अजीजों। क्योंकि अक्सर लोग जो बात करते हैं, बात आते ही बपतिस्मे की कहते हैं तीसरी मिशन, गोते वाली मिशन। बहुत से इशू ऐसे उठते हैं। क्यों उठते हैं? कलाम क्या कहता है बपतिस्मा के बारे में। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो भी मैं आपको अनकरीब बताऊंगा बपतिस्मा के बारे में, जो ये कहते हैं कि बच्चों को एक बार ही बपतिस्मा दिया जाता है। बच्चे जो छोटे होते हैं उनको क्या पता है गुनाह के बारे में, उनके गुनाह क्या माफ होंगे। लेकिन ये देखिए मैंने आपको पॉइंट बाइबल में से निकाल के दिखाए हैं कि यीशु के नाम के वसीला से इंसान क्या पाएगा, निजात पाएगा। जो अभी अभी दुनिया में आया है उसका क्या बपतिस्मा, वो क्या उसको गुनाहों की माफी चाहिए, उसने क्या गुनाह किया। जी, इसी के अगले हिस्सा को हम जरूर सीखेंगे। दूसरा हिस्सा हम अनकरीब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो चैनल को देख रहे हैं, एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहते हैं। आमीन।